liquid state and gaseous state, and the properties of solid, liquid and gases. Now the next connected topic of your class is there any changes occur among this state, whether solid changes to liquid, liquid changes to gases, or gases changes to solid? So is there any changes in the state? This is the point of discussion, that the state of matter changes. So we should understand the concept of changing the state of matter. If we take example of ice is solid. This ice melt and produce liquid. If this is heated, it produces gases. So this ice is solid, water is liquid, and these vapors are gases. So how it changes? If you see, the solid changes to liquid when the temperature increases. As the temperature increases, the solid start forming liquid, and that temperature where solid start forming liquid is known as melting, and that temperature, that point is also known as the melting point. This phenomena is also known as fusion. इसको फ्यूजन भी बोलते हैं. Then liquid changes to gases. Again, when the temperature increases, liquid start vaporizing. Means boiling takes place. So that temperature where the boiling starts, that is boiling point. We had discussion last time, degree Celsius and Kelvin scale. बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये जो भी है ये केल्विन स्केल में या डिग्री सेल्सियस में ही लिखते हैं. लेकिन केमिस्ट्री में जब भी आप लोगों को कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो केल्विन में ही टेम्परेचर को आपको कन्वर्ट करना है पहले, आप फॉरवर्ड ध्यान रखें. सो लिक्विड टू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट, देयर आर सर्टेन चेंजेस इन रिवर्स मैनर आल्सो. So gases changes to the liquid. गैसेस का भी तो लिक्विड में चेंज होता है ना, कैसे होगा गैसेस का लिक्विड में चेंज? सो गैसेस चेंजेस टू द लिक्विड, कंडेंसेशन. गैसेस चेंजेस टू द लिक्विड मीन्स दिस प्रोसेस इज द कंडेंसेशन. मीन्स टेम्परेचर डिक्रीजेस, हियर इंक्रीजेस, हियर डिक्रीजेस. So when the temperature decreases, gases changes to the liquid. Again the temperature it will decrease. So this liquid gets solidified. So again the decrease in temperature. Here also decrease in temperature. So temperature decreases. यहाँ temperature decrease हो रहा है, यहाँ temperature decrease हो रहा है, और liquid changes to the solid. There is one example, you know, that camphor. Camphor when put in air, it directly vaporizes before going to liquid. कपूर जो होता है, कपूर का कभी लिक्विड नहीं बनता, वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाता है. और जब सॉलिड से गैस जब बनता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन. Sublimation, solid to gas. This process is the sublimation.
और उल्टा अगर पढ़ेंगे तो इसको सॉलिड टू गैस तो हो गया सब्लिमेशन, और गैस टू सॉलिड अगर हम तो डिपोजिशन। दिस इज द डिपोजिशन। So this is the change in the state of matter. So the change in state of matter can be possible when there is either change in temperature. अगर टेम्परेचर बढ़ता है या टेम्परेचर कम होता है तो चेंज होती है स्टेट किसी की भी। कोई भी अगर गैस लेते हैं जैसा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो गैस है, लेकिन उस गैस के ऊपर अगर प्रेशर देते हैं, प्रेशराइज करते हैं, तो गैस प्रेशराइज होने के बाद लिक्विफाइड हो जाती है। प्रेशर देंगे तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो गैसेस चेंजेस टू द लिक्विड स्टेट। और अगर उसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ेगा। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ा तो लिक्विड से गैसेस के फॉर्म, मतलब एवरी मैटर कैन पॉसिबली चेंजेस देयर स्टेट्स। सो ड्यूरिंग चेंजिंग द स्टेट दिस टर्म मेल्टिंग, बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन, बिकॉज बॉइलिंग स्टार्ट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैस, means liquid start evaporating, liquid start evaporating. So the process in which the liquid particle directly goes as a gaseous molecule, means liquid particle जो है वो हवा में चले जाएंगे, evaporate हो जाएंगे, निकल जाएंगे, डिस्टेंस उनका बढ़ जाएगा। That process is the evaporation. टेक्स्ट बुक में आपको ये भी है कि व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब अपने को पता है कि घर में मम्मी भी अगर कपड़े धो के ऊपर सुखाती है तो हवा अगर ज़्यादा है तो जल्दी कपड़े सूख जाते हैं, या धूप ज़्यादा है तो जल्दी कपड़े सूख जाते हैं, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जल्दी कपड़े सूख जाएंगे। लेकिन अगर मौसम अगर बारिश का हो तो जल्दी कपड़े नहीं सूखते। क्या समझ में आता है इससे अपने? इसमें समझ में आता है कि टेम्परेचर अगर कम है तो इवेपोरेशन स्लो होगा, टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन फास्ट होगा, हवा अगर है तो इवेपोरेशन फास्ट होगा। और इवेपोरेशन के लिए हम लोग कपड़े का एग्जाम्पल लें। मान लो अगर लिक्विड है, मान लो पानी, एक एग्जांपल लेते हैं, पानी है, पानी ऐसे बड़े वाले कंटेनर में, ऐसे बड़े वाले 10 ml पानी से बड़े कंटेनर में रखा हमने एक जगह, और 10 ml पानी टेस्ट ट्यूब में रखा, और दोनों को हमने 24 घंटे रखा, तो क्या होगा? जहाँ पर बड़ा कंटेनर था ऐसा पतला वाला ऐसा, और पानी ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब जहाँ पर पानी को हवा ज़्यादा मिल रही है, मतलब एरिया फॉर इवेपोरेशन इज मोर, और टेस्ट ट्यूब में छोटा सा होल होता है, वहीं से इवेपोरेशन होगा। सो रेट ऑफ इवेपोरेशन अगेन डिपेंड्स ऑन द एरिया, कितना एरिया एक्सपोज किया हुआ है इवेपोरेशन के लिए।